خواتین و حضرات، پولیٹکس میں دھوم دھماکہ تو دنیا کا سب سے بیسٹ تجزیہ نگار آپ کے اس وقت سامنے میں کسی وجہ سے کہتا ہوں. تمام بڑے بڑے اینکر پرسن سب کو ویوز کے چکر میں جھوٹ بولنا، وہ ٹیگ لائنز تھم نیل کے اوپر لگانا کہ جی وہ ادھم مچنے والا ہے، گاؤں سجنے والا ہے، عید آئی میرا یار نہیں آیا باہر. تو کل جو ایپیسوڈ ہوا عمران خان صاحب کی رہائی کا، اللہ تعالیٰ کو صحت و تندرستی. سب سے پہلے تو میں بالکل خلاف ہوں کہ صحت کے اوپر کسی کے ساتھ کسی کی اوپر سیاست کی جائے، کسی کی صحت پر سیاست کی جائے. اور خواہ وہ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، عمران خان ہوں یا کوئی بھی ہو، پاسٹ میں اچھی نہیں مثال سیٹ کی تو آج آپ کرما بھگت رہے ہیں. آپ کے الفاظ آپ کا پیچھا کرتے ہیں جب آپ غلط بات کرتے ہیں. تو انسان کو اپنا وقت نہیں بھولنا چاہیے. کہنا ہوگا آپ نے کرما از اے ڈیش، تو سنا ہوگا آپ نے. تو اس لیے انسان کو بولتے ہوئے بہت فہم سے کام لینا چاہیے، جیسے کہ میں لیتا ہوں. مجھے لوگ اکثر ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے اگینسٹ اور نواز شریف پی ایم ایل این کے طرف زیادہ میری انکلینیشن سمجھتے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں پی ایم ایل این اور پی 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 کا نقاد نہیں ہوں. پی 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 کا تو میں بہت بڑا نقاد ہوں اور باقی سب پہ بھی تنقید کرتا ہوں. پی ٹی آئی میں تھوڑی زیادہ کرتا ہوں کیونکہ ان کی غلطیاں مجھے زیادہ لگتی ہیں. ان کے رویوں سے مجھے بڑا پرابلم ہے. ان کا اس بدتمیزانہ لہجے سے جو وہ فوراً لوز کر دیتے ہیں ٹیمپر، اس سے مجھے ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ان کا جینین ہے. اب کل کیا ہوا پہلے تو یہ بتاتا ہوں، پھر میں آج آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ کو کہیں نہیں پتہ چلیں گی، کہیں بھی، ایون کہ شاید حلقوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہونا جا رہا ہے. یہ سیاسی بصیرت ہے الحمدللہ. تو ڈنکے کی چوٹ پہ میں یہ بات کرتا ہوں. میرا اپنا جزیرہ ہوتا سر اگر آپ میری پیشن گوئی ہیں جو میں نے کی ہیں اور ابھی جو میں بتاتا ہوں. اب اس دن والی لے لیں جو میں نے پیپلز پارٹی والی بتائی. میں نے کہی جو محسن نقوی کا بیان ہے یہ پیپلز پارٹی کو ٹھکانے لگانے یا ان کو سبق سکھانے کے لیے ہے. ابھی 2-4 دن پہلے وہ کیا معاملات ہوئے تھے، اس کے بعد سب نے یہ بات کی کہ ہاں جیسے شاہ خان صاحب کو باہر لانے کی جب بات ہوئی تو کہا یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک وہ ہے، وہ مان نہیں رہی صوبوں پہ. تو خبر تو ہم نے پہلے دی نا. بعد میں جب سب ہو گیا اس کے بعد تو کڑیاں کوئی بھی ملا لے گا، لیکن شروع میں بتانا. اس وقت جب محسن نقوی بات کر رہا ہے سوچیں کہ یہ کتنا مشکل ہے. اس وقت یہ جملہ ذہن میں لانا، کہاں پیپلز پارٹی، کہاں محسن نقوی، کہاں یہ بات صوبوں کی، بیڈ گورننس کی، نظام کے فیل ہو جانے کی، اور کہاں میں یہ بات آپ کو ایڈوانس سے بتا رہا ہوں کہ کیوں ہو رہا ہے. آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا تو آگے بتاتا ہوں. بہت بڑے انکشافات ہیں. کل جو ہوا وہ بالکل غلط ہے. دیکھیں نون لیگ کو یہ سمجھنا ہوگا وہی غلطی جو عمران خان نے کی، پوری پارٹی پی ایم ایل این کی جیل میں ڈال دی، وہی حرکت آپ آج کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ بدلا لے رہے ہو. یار یہ تو زیادتی ہے. ایک آدمی کی صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کی عمر بھی ماشاء اللہ 74 سال ہے. عمران خان کو بہترین سے بہترین فیسلٹیز صحت کی دینی چاہیے. وہ مجرم ہیں جو بھی ہے، بہرحال وزیر اعظم ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو صحت کے لیے اس کے اوپر وہ نہیں ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحت کے اوپر بات تو ہم نہ کریں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آج ان کی بہن نے، اب وہ غلط کہہ رہی ہیں یا کوئی اور غلط کہہ رہے ہیں پارٹی کے لوگ جو بنگلے ڈال رہے ہیں کہ خان نے، اچھا کنفیوز بہت ہیں. ایک طرف جب کل اس کو چھوڑے تھے کہہ رہے تھے اب سسٹم کا باپ آ رہا ہے، اب دیکھو کیا ہوگا، پی ایم ایل این اور حکومت تمہیں بتاتے ہیں. دوسری طرف وہ جیل میں علاج کرانے سے منع کر رہا ہے. ایک پارٹی ہے، وہی پارٹی جو یہ بات کر رہی، پھر وہ یہ بات کر رہی، پھر تیسری وہی بات کر رہی. دیکھا خان نے ڈیل نہیں لی، دیکھا لندن نہیں گیا، دیکھا ہاسپٹل میں نہیں گیا، دیکھا واپس آ گیا. مانا ہی بھائی تم چاہتے کیا، پہلے آپ چاہتے کیا ہیں، تو اس حساب سے پھر بندہ کوئی آپ کے تیار کرے. پی ایم ایل این ڈر گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا، کہ کیوں انہوں نے راتوں رات شفٹ کر کے واپس کیا. بس انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ عدالت کا حکم تو ہم نے پورا کیا، باقی ہم نے واپس لانا ہے. دیکھیں وہاں جو سیناریو کریٹ ہو رہے تھے، جس طرح وی لاگرس پھدکنے لگ گئے تھے رات کو، جو ایک ماحول بن گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. تو پی ایم ایل این تو پہلے ڈری ہوئی ہے، پہلے بھی ڈسی ہوئی ہے. بہت کچھ راتوں رات چند تبدیل ہو جاتا ہے اس میں. تو پاس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے گھبرا گئے کچھ لوگ. شہباز شریف صاحب اوکے، ڈر ان کو بھی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اوکے پی ایم ایل این اوور آل ابھی اوکے ہے، ابھی اوکے، ابھی حکومت نہیں جا رہی. یہ میرے اس کے پیچھے تکے نہیں ہیں، میرے پیچھے ایک جینین ریزن ہے، ریشنلز ہیں، وجوہات ہیں، جن کی بنا پہ یہ بات کرتا ہوں میں. اب میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ بھائی پی ایم ایل این کہیں نہیں جا رہی. عمران خان کا باہر آنا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان تمام دوسری پارٹیوں کی موت ہے. عمران خان جس دن باہر آ گیا 2/3 سے اوپر وہ الیکشن جیت جائے گا. فیئر اینڈ فری الیکشن اگر اب نہ بھی ہوئے نا، تو اب بھی آپ عمران خان کو باہر ہرا نہیں پائیں گے. اتنی سپورٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. تو پی ایم ایل این کو یہ ڈر تھا کہ کہیں راتوں رات ہی کوئی گیم نہ پلٹ جائے. ڈر گئے وہ، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی گیم نہیں ہونے جا رہی، لیکن ان کو ڈر گئے. اب اس سے ایک تیر سے بہت سارے شکار ہیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ خلاف نہیں ہے ابھی پی ایم ایل این کے، ان کے ساتھ بڑی اچھی جیل ہوئی ہوئی ہے. تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ حکومت مدت نہ پوری کرے، یا کم از کم ابھی نہ جائے، ابھی نہیں جا رہی ہے. تو وہ شکوک و بنیاد پہ وہ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار پھر سازش ہو گئی، تو پھر یہ ہو گیا وہ گیا. سازش کیا یار، آپ حکومت کیا کر رہے ہو؟ آپ اتنا اچھا انٹرنیشنلی وہ کریڈٹ ہے اس حکومت کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس حکومت نے بین الاقوامی طور پہ بہت جھنڈے گاڑے ہیں کامیابیوں کے. اس میں دیکھیں آپ نفرت کریں، جلیں، حسد، سچی بات ماننی چاہیے. مریم نواز نے بہت اچھا کام کیا ہے. پیپلز پارٹی کی پالیسی اور طاقت اور پرفارمنس ویسی ہے جیسی ہمیشہ تھی.
मतलब आपको पता ही है। तो PMLN ने सबसे बड़ी गलती पेट्रोल प्राइसेस के साथ की है, जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो अचानक से एक डिफेमेशन आई है ना इनकी, वो इसी वजह से आई है, वरना सब सही चल रहा था। इन्होंने पेट्रोल के ऊपर एक मजाक बना लिया है। इतनी कोई महंगाई पूरी दुनिया में नहीं हुई, आपने कर दी, फिर आप इस पे बज़िद हैं, आवाम से लड़ लड़ के आप पैसे बढ़ा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप आवाम से लड़ रहे, अरे भाई हुकूमत कुर्बान कर दो, अरे भाई जेब से दे दो, अरे भाई हुकूमत के पैसे दे दो, खजाने में से आवाम पे ही लग रहे हैं, इस मुल्क के पाकिस्तान की आवाम पे लग रहे हैं ना। तुम्हें इतनी फिक्र है पाकिस्तान की आवाम की कि उनकी खातिर कोई बुरा फैसला ना हो जाए, इसलिए तुमने कीमतें बढ़ाई। अबे भाई तुम्हें अगर आवाम की इतनी फिक्र है तो उनकी बात मान के तुम ये कीमतें घटा दो, होने दो नुकसान, आवाम को बताओ आपकी खातिर कर रहे हैं। इस मुल्क की आवाम को ही मिल जाएगा कोई फ़ायदा यार, वक्त ही सही। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएंगे, क्यों किसको बेवकूफ़ बनाते हो यार? आपको भी पता है आप लूट रहे हो इसके ऊपर लेवी के नाम पे। वो जमात इस्लामी बेचारी धरना दे रही है, यहाँ लोग उनके मुखालिफ हो रहे हैं कि जब धरना देते पैसे बढ़ जाते हैं। अरे तो क्या करें भाई वो, मतलब वो क्या करें, मतलब कोई बात ही करना छोड़ दे जुल्म के खिलाफ, अवामी रद्द अमल देना ही छोड़ दें? कैसी बात करते हैं आप? क्यों गलत साइडों पे खड़े हो गए? फ्रस्ट्रेट इतनी हो गई है कौम की, उल्टी बात करने लगी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब मसला ये कि ये डोज भी जमात इस्लामी को भी सही मिला, इसलिए कि ये हर किसी पे है। MQM तो इस मुल्क पीपल्स पार्टी मिले हुए, MQM और पीपल्स पार्टी इनका गठजोड़ है, ये मिलके बी टीम है MQM इसकी। अब आपको कोई बी टीम कहे कि आप तो वो नहीं छोड़ रहे, नाजिम बने हुए हैं आपके उसी निज़ाम में जिसमें आपको राइट्स नहीं मिल रहे, फंड्स नहीं मिल रहे, आपका कब्जा मेयर आपके ऊपर बैठा है, आपने क्यों नहीं निज़ाम छोड़ दिया? सारे मजे तो आपने भी लिए, मजे से मुराद आप बैठे रहे सीटों पर। MQM को भी आप यही कहते थे ना, MQM के पास भी कोई वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की कुर्सी तो नहीं रही, वजारत उस्मत तो MQM के पास नहीं रही, आप इसी पे उनको सवाल करते थे ना। मेरे भाई ये सवाल ही उठा सकते हो, आवाज़ ही उठा सकते हो, वो तो पार्लियामेंट में उठाते हैं जो कि बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है इस काम के लिए। आप उनको तनकीद का हमेशा निशाना आता है, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। कभी कोई आपसे कहे कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, आपकी कोई नहीं सुनी जा रही, छोड़ क्यों नहीं देते? इतना आसान नहीं होता भाई, सिस्टम में रह के बात करनी पड़ती है। हाँ थोड़े बहुत मज़े वजारतों के सबको लगते हैं, निज़ामतों के नाजिम बनने के, फंड्स आने के पड़ते हैं जो थोड़े बहुत आ रहे हैं, काम कराने के, लोगों में वाह वाह होने के। इंसान जीत के आता है कुर्सी, तो क्यों छोड़ दे? ये अब आपको समझ में आनी चाहिए ना बॉस। बात बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, हल सिर्फ जमात इस्लामी तो आप कहते हैं, तो ये बात भी पूरी समझिए। हमेशा 2.5 ईंट की मस्जिद बना के आप खड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको जलसों को ना कवरेज मिलती है ना कुछ मिलती है। ऐसा नहीं आपके पास कोई दुनिया और आखिरत के लोग जो है वो क्या दुनिया पूरी आपके खिलाफ साजिश कर रही है, ऐसा नहीं है भाई। आपकी अपनी करतूत भी ऐसी, आप हमेशा 2.5 ईंट की मस्जिद अलग बना के चलते हैं। हाँ मौलाना फ्रैक्शन तब तो खैर जमात इस्लामी के साथ इस्लामी फ्रैक्शन बहुत कम लगता है, तो आपको भी देखना होगा अपनी पॉलिसियों में। लेकिन अभी आप जो एहतजाज करो, मैं समझता हूँ वाहिद पार्टी है जो अवामी मसाइल पर एहतजाज कर रही है, तो भाई उसको अप्रिशिएट करो, उसी पे तनकीद करे जा रहे हो कि जब भी एहतजाज करते पैसे। ये तो हटदर्मी हुकूमतों की हुई ना, जो सही आदमी बात कर रहा है आप उसी पे तनकीद कर देते हैं। समझें यार, अकल और शऊर लाएं। PTI के दोस्तों से कहता हूँ अकल और शऊर लाओ अपने अंदर, किन चक्कर में पड़े हुए यार। मतलब आप पहले एक तरफ तो जाओ, चाहते क्या हो? माना आपके साथ अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं खुद हक में हूँ कि इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए, वो भी ऑनेस्ट 3 साल कोई भी बर्दाश्त नहीं करता जेल में। ये तो वाहिद लीडर है जिसने की, ये बात उसकी माननी पड़ेगी। आप कहते थे और हम सब कहते थे कि ये आदमी नहीं गुजार पाएगा जेल में टाइम, इसने गुजारा, तो ये हकीकत तो हमको माननी पड़ेगी। तो बड़े बड़े मसाइल हैं इस मुल्क में, क्या हो क्या रहा है? इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एक थी से छोटा मोटा ज़रा हल्की फुल्की मौसीकी उन्होंने छेड़ने की कोशिश की है, थोड़ा सा PMLN को भी डराया कि 2.5 साल आपने बगैर अपोजिशन के सारे सया सफ़ेद के आप मालिक रहे, किसी ने आपको तंग नहीं किया। अब थोड़ा अगले 2.5 साल जो हैं वो इसी तरह रगड़ रगड़ के आपके, समझ रहे हैं आप भी ज़्यादा अपने आप को हीरो ना समझें, आप भी तब्दील किए जा सकते हैं, लेकिन तब्दीली अभी नहीं आ रही। इसके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ PMLN का गठजोड़ अच्छा चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब का अच्छा चल रहा है, और मेरा ख्याल है जो कहीं नहीं चल सकता वो शहबाज शरीफ साहब के साथ चल सकता है। वो इतने ज़्यादा अच्छे, ईजी टू जेल विद या ईजी टू गो अलॉन्ग, ये इस टाइप के ईजी टू गो अलॉन्ग टाइप के वो आदमी हैं, तो उनके साथ चलना मैं समझता हूँ कि ईजी है इस्टेब्लिशमेंट के लिए बनिस्बत दूसरे लोगों के। जरदारी साहब की प्रेसिडेंट की कुर्सी मुझे ख़तरे में लग रही है आने वाले बहुत चंद ही महीनों के अंदर। सूबों की बात के लोग कहते हैं कि ये सिर्फ शोशा है, छोड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि इस बार ये सिर्फ शोशा नहीं है सूबों का, इसी पे अगली सियासत अब अनफोल्ड होगी 2.5 साल। अब ये हो सकता है 2.5 साल तक सिर्फ सियासत ही होती है और सूबे ना बने, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि अगर 1 से 2 सूबे जो कि भाई ये तो रेडी पड़े हैं ना, इनकी तो करारदादें मंजूर हैं पंजाब में और KP में, वो हज़ारा और कौन सा है दूसरा, हज़ारा और जनूबी पंजाब सूबा, तो वो तो आप बनाना शुरू करें ना। एस्टेब्लिशमेंट अगर सीधे से शुरू करें, अगर वहाँ बन जाएंगे तो फिर आवाज़ यहाँ भी उठेगी और फिर शिद्दत से उठेगी, तो फिर मना करने का जवाब सिंध के पास भी नहीं रहेगा। देखिए हमें भी देखना होगा कि सिंध में एक नाजुक मामला है, सूबे नहीं, तो मैं बड़ा अच्छा मशवरा देता हूँ, इस पर सबको मानना चाहिए कि वो भी कराची वफाक को अंडर से भी बेहतर मंसूबा है। आप तय कर लें कि कराची में मकामी हुकूमतों को डायरेक्ट वफाक हर महीने जो भी जिस तरह भी दे, आप उसकी सेटिंग बना लें, आप बड़े लोग हैं, लेकिन इसका तरीका ये लेट से कि भाई साल के 1000 अरब रुपये पाकिस्तान कराची को मिलेंगे, सिंध के पैसों में से 1000 रुपये डायरेक्ट वफाक दे देगा, वज़ीर आला को नहीं देगा, नाजिम
को दे देगा, मेयर को, और वहाँ से वो खर्च करवाएगा और उसके ऊपर सूटनी भी रखी जाए, जो तरीक़ेकार होता है वो करें आप। लेकिन ये बेहतर तरीका है, इसमें टूट टुटाने की भी बात नहीं होगी और काम भी होना चाहिए। देखिए, असल मकसद है मसाइल को हल करना, किसी की इकाई को तोड़ के फ़ायदा तो कोई नहीं। सिंध के अंदर बड़ा ब्लड शेड, ब्लड बात का खतरा है, ये बात तो हकीकत है, ये मामला सीधा नहीं है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि भाई जब सिंध में नहीं बन सकते तो फिर पंजाब वाले भी तो कह सकते हैं हम भी, भाई हमारी भी धरती माँ है पंजाब, केपी वाले भी कह सकते हैं हमारी धरती माँ है, बलूचिस्तान वाले भी कह सकते हैं हमारी धरती माँ है। तो इस तरह तो नहीं होता ना। आप पाकिस्तान फेडरेशन है, पाकिस्तान मुल्क है, बहुत हसास मामला है ये, इसमें मोहब्बत से भाई इस बात को लें, सिंधी भाई भी और तमाम पाकिस्तानी भी, कि देखें यार, कराची के भी तो डिवीज़न किए गए थे कई सारे हैं, उस वक्त सिंध नहीं टूटा। कराची में कई अजला को तोड़ के मजीद अजला मलिर जैसे निकाला गया, पीपल्स पार्टी ने अपने फ़ायदे में निकाल लिया। उस वक्त किसी मेरे सिंधी भाई के दिल पे सांप नहीं लौटे हैं। सिर्फ महाजरों को या उर्दू स्पीकिंग को अगर उनके शहर में राइट्स नहीं दे रहे, देखें ना, आज तक पीपल्स पार्टी ने बहरहाल इस्तेसाल किया है कराची के लोगों का, एक बोझ है उनके अंदर, ये बात आपको माननी होगी। अब वहाँ यहाँ के लोग उसको वोट नहीं देते, तो कराची का हाल उन्होंने बहुत ख़राब किया। आप आके देखिए, मेरे सिंधी भाई जो गोट देहात में रहते हैं वो देखना चाहिए। देखें, इनविटेबल है, आज नहीं तो अगले 50 साल में, 20 साल में, 10 साल में ये होगा, ये करना पड़ जाएगा आपको। ये हर दफ़ा कह देना कि जी सिंध में तो सोचे भी ना कोई, तो भाई पूरे पाकिस्तान में भी ना सोचे कोई, ये तो फिर गलत बात है ना। और सोचे तो पूरा पाकिस्तान सोचे। सबके सिंध में एक सिंधी जो मेरा भाई जो बलूचिस्तान क्या क्या बोलते हैं उसको, लेट्से के 7 के अंदर है, अब वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, वज़ीर आला बनना चाहता है, वो इस सिंध में तो नहीं बन सकता पीपल्स पार्टी के होते, वो वहाँ बन जाएगा अगर ताकत हुई, काम किया हुआ कोई लोगों में पगीराई हुई तो चांस तो है। तो तुम्हारे लिए वज़ीर आला बनने का किसी सूबे के मौका मिलेगा, इसमें कोई लालच नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको सोचने को कह रहा हूँ। दुनिया में चीज़ें तब्दील होती हैं। भारत का हिस्सा था सिंध, टूट के पाकिस्तान का हिस्सा हुआ मेरे भाई। हाँ, सिंध धरती सेल्फ, तो मतलब हम मुल्कों से भी बड़े हैं यार, ये तो सोचने की बात है। फिर ठीक है, मोहब्बत होती है, मैं खुद कहता हूँ कि सिंधी भाई बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, माजरों के लिए बड़ा कुछ किया भी है उन्होंने यार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कैसा, और इसमें सिंध टूटने की बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता भी, कराची को वफाक के अंदर चले जाए, सिर्फ इंतजामी बुनियाद, वैसे वो सिंधी है, सिंध के साथ कोई बॉर्डर थोड़ी लग जाएगा, कोई नया बैरियर थोड़ी लगा देंगे। सिंधी है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली कराची को चलाने के लिए पैसे वहाँ से हैंडल पे भेजे जाएंगे, यहाँ से काम हुआ जाएगा, इतना सा काम है। इसको अगर आसान करके समझें। अब जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी को तो इसमें बुराई नज़र आ सकती है, क्योंकि उनकी तो सियासत बढ़ जाएगी काफ़ी हद तक, क्योंकि पैसे का जो जनरेशन है वो कराची और हैदराबाद से, कराची से मेनली, तो हैदराबाद से भी नहीं, कराची से। तो अगर वो सोने की चिड़िया जाएगी तो उनको नुकसान उनका चीखना बनता है। लेकिन मेरे सिंधी भाइयों को समझना चाहिए कि जो लोग जिस शहर में रह रहे हैं उनके मसाइल हैं, सालों तक वो ये मसाइल उठाते रहे, सालों तक। आपने भी तो कभी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई, आपने भी तो कभी नहीं कहा नहीं यार पीपल्स पार्टी गलत करती है हमारे माजर भाइयों के साथ। तो जब ये आप नहीं कहते तो आप इधर भी ना सवाल करें फिर यार, हैं कहीं से तो मानना पड़ेगा ना। तो कोई बीच का इंशाल्लाह निकलेगा। मुझे लगता है कि दफ़ा सूबों की बात ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा। बात दवा हामिद मीर जैसे साहब ने भी कह दिया, वो सीधे वाली बात तो दब गई। असल में गेम तो एक दिन में नहीं होते, ऐसा लगता है एक दिन आप जीत गए, एक दिन आप हार गए, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ और होते हैं। तो अभी इमरान खान का एपिसोड भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि दोबारा कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होगा और नून लीग ने गलती की है, ये मामले को गलत तरीके से हैंडल किया है। उनको चाहिए था कि 2-4 दिन इमरान खान को एडमिट रहने देते। असल में वो डर गए उस आउटफ्लैश से, वो वीलॉग से, वो जो फूलों की पत्तियाँ, और पता नहीं उनको ऐसा लगा आज रात हुकूमत चली जाएगी, सर गिर जाएगा पहाड़। सपोर्ट तो है, डर तो उनको लगता है कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आए वही गलतियां फिर शुरू होंगी जो नून लीग आज उनके साथ करी और जो उससे पहले इमरान खान उनके साथ करते रहे। यही इमरान खान साहब आके दोबारा भी इन सबको जेलों में डाल देंगे अगर आए। वैसे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अब इस अगले 2.5 साल हुकूमत में आते हैं, क्योंकि वो जेल से बाहर मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सदर की कुर्सी खतरे में लगी आसिफ जरदारी साहब की। एक नया निज़ाम आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें नून लीग, शहबाज शरीफ का रोल मुझे वैसा वज़ीर आज़म नज़र आ रहा है, लेकिन जो पावर्स हैं वो वज़ीर आज़म से उठ के कहीं मुझे जाती नज़र आ रही हैं, और फिर वो चलाएंगे पूरा निज़ाम और फिर वो करेंगे गेम, ऐसा मुझे लगता है। और ये इसी साल मुझे लगता है एंड में। बहरहाल हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैं आपको बता दिया है मैंने, और मैं जिधर की नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सोच के बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ। अफरीदी जो हैं इनके केपी के वज़ीर आला साहब भी अच्छा डील कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत अक्लमंद होशियार आदमी लगे मुझे। मेरी अपनी नज़र देखने की तो मैं जानता हूँ कि उसने बहुत अच्छा डील किया है, बहुत आते के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो एक अच्छा जेल बना के चल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई साहब के बानी के लिए, कुछ मेहनत वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये बात अब आया भी हो चुकी है, पीटीआई के अपने लोग बोल चुके हैं आके टेलीविज़न पर। तो ये मामला है। तो नून लीग को, पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा झलक दिखलाई गई है कि भाई झलक दिखलाओ जो कराए उनके साथ, और सज्जा दिखा के खब्बा पीटीआई वालों को भी मारा है। रात में पकड़े डाल रहे थे, घुंघरू तोड़ रहे थे, और आज सुबह उनके साथ मतलब सो के भी मैं सो के उठाऊँ, मैंने देखा कि चलो देखो यार खान साहब किधर है, कहाँ है, पता चला वापस तो डीएलआई भेज दिया। यार ये कोई तरीका होता है यार, मतलब कोई बड़ी वापस ही भेज दिया है यार, मतलब वापस ही भेज दिया है, मतलब आपने इतना जुल्म। भाई तो नाचने भी नहीं दिया, गाना मिठाई भी पूरी अंदर नहीं गई थी बेचारी, आपने ये जुल्म किया है। बहरहाल ये कि मेरे ख्याल में इनका इलाज होना चाहिए,
इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म रहे हैं और 3 साल बेचारे ने भुगत लिया है। तो अगर कुछ ऐसा मेजर पता नहीं यार, वो आप लोगों की अदालत का मसला है, लेकिन मैं आवाम हम ये समझते हैं कि चीज़ों को नॉर्मलाइज़ होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई के साथ कोई डील वगैरह नहीं हुई। इमरान खान साहब को जो बाहर ले आया गया है ये सब हल्का सा शशका था, डील नहीं हुई है। जुल्फी बुखारी का वो बयान अभी चला है कि जिसमें इमरान खान साहब उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब कोई लड़ाई नहीं करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से और मिलकर चलेंगे, अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, कोई सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। यही कुछ साइन करके इमरान खान को इलाज के लिए भी लाया गया है। जो पीटीआई की पूरी बड़ी एमएनएस वगैरह अंदर जो जाते हैं उन्होंने किए थे तहरीरी तौर पे कि भाई वो कुछ नहीं करेंगे, हम सियासत नहीं करेंगे, खान साहब को बस इलाज होने दिया जाए, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन आवाम उनसे कंट्रोल नहीं होती, जाहिर सी बात है। पीटीआई की आवाम मिस मैनेज तो है, तो मिस मैनेजमेंट में उनसे ये गड़बड़ हो गई। तो पीटीआई के दोस्त भी यार मुझे अपने खिलाफ ना समझे, कोई भी अपने खिलाफ ना समझे। मैं जनरल व्यूज़ देता हूँ, जनरल जो होने जा रहा है वो बताता हूँ, और जिस तरह मामला चल रहे हैं वो बताता हूँ। किसी की हिमायत में होंगे, किसी के खिलाफ होंगे, लेकिन बुरा मत माना करें उसको। और दूसरी बात, वीलॉग देखने का शुक्रिया, शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कभी मैं बहुत बड़ा वीलॉगर बनूँगा इंशाल्लाह इस सियासी मंजरनामे का, तो फिर आप उस दिन कहेंगे कि यार साइन वाइन करवा दो, कोई फात भाई हमारे कमेंट का भी जवाब दे दें। तो फिर उसको, क्योंकि मैं जो प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस है, और मैं जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इमरान खान के जाने का कोई नहीं सोचता था, 10 साल का प्लान था, दुनिया मानती थी ये बात, कहते थे अदम एतमाद क्या कुछ नहीं आ सकता। अच्छा हाँ, अदम एतमाद नून लीग के खिलाफ, अच्छा नून लीग को भी सोचना चाहिए, डरने की ज़रूरत क्या है भाई। अगर तो उनकी सेटिंग पैचअप हो गया एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का, तो फिर आप इनको इलाज के लिए आने दें ना दें, आपकी तो वो वाट लगी जानी है। तो आप डर किस बात करें, अभी तो सही फैसले करें। आप कल के डर से आज क्यों गलत फैसले कर रहे हैं भाई मेरे। अभी तो आपका पेज वेज सब सही चल रहा है, आप टेंशन ना लें। आप घबरा गए, नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को पता है इसका। हाँ, सूबों के ऊपर उनको मनवाया जा रहा है और ये इसीलिए किया जा रहा है। तो मैंने ये भी बता दिया कि सदारत ख़तरे में है, और सदर कौन आएंगे ये भी बताया है मैंने आपको, और वो सबको साथ मिला के चलेंगे ये भी मैं आपको बताऊँ। अभी तो उनका डंका बजना है इस पूरे रीजन में, इस पूरी दुनिया में इंशाल्लाह, और अच्छा वाला। तो ये आप देखिएगा, पीटीआई भी खुश हो जाएगी, ऐसी गेम बनेगी कि पीटीआई भी खुश हो जाएगी और भी सब खुश हो जाएंगे। हंसी खुशी मिलते जुलते देखते रहिए लेंस टेलीविज़न। अस्सलाम वालेकुम।